today I am in front of you with another topic of our chapter, retirement and death of a partner. Previous class we have doing about the death of a partner. So today, in today's video, I am going to tell you that how to maintain the capital account of a deceased partner after his death, who will get the amount payable to deceased partner and how it should be calculated. In today's class we are going to learn about these things. So for explaining this topic, I have just taken a question. Let's first understand the question and then I'll show you that how we are going to prepare the capital account of a partner who is dead. So let's start with the question. So question is, PQR are three partners who shares their profit in the ratio of 3:2:1. And now this is the given balance sheet as on 31st March 2004. So let's have a look over the balance sheet. So this is the liability side. Let's first see the liability side. Bills payable of rupees 1,20,000, creditors for 1,40,000, Q's loan at rate of 5%, 1 lakh rupees. It means 1 lakh is the loan and 5% is the rate of interest for the loan. Now here reserve rupees 1,80,000 and capital accounts of all three partners are given. P for 2 lakh, Q 1,20,000 and R capital is 80,000. Now coming to the asset side, that is cash 20,000, debtors 1,40,000, bills receivable 70,000, stock 1,70,000 and investment 1,30,000. And one more different thing is given, that is advertisement suspense account, whose amount is 1,20,000. We have, I'll show you in while I'll solving the question that what we have, what treatment will be done for this advertisement suspense account. Next one is the building, 2,90,000. This is about the balance sheet. Now what additional information is given, let's see that. Q died on 12th June 2014. It means the balance sheet has been prepared at 31st March 2014 and after few days on 12th June the same year, Q is dead. So according to the deed, according to partner's deed, the executor were entitled to be paid. It means whatever amount to be payable to Q after his death will be paid to his executor account. This has been done in the deed. Now, additional information given about the deed is it means that Q's share of profit in the firm till the date of his death on the basis of average profit for last 3 year, complete 3 year. It means Q का share of profit जो है वो हम last 3 years के profit के basis पे, average profit के basis पे calculate करेंगे. As well as उसका goodwill जो है वो भी calculate होगा on the basis of 2 years purchase of total profit for last 3 years. तो यहाँ पे हम लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट पे और 2 इयर्स परचेज कंसिडर करते हुए गुडविल कैलकुलेट करेंगे. नाउ एट द लास्ट इन्फॉर्मेशन गिवन इज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 इयर्स आर रुपीज 30,000, 70,000 and 80,000 respectively. Next, prepare Q's capital account to be rendered in his executors. Means Q का capital account we have to prepare. So let's start with the solution. Before starting for preparing the Q's capital account, let's start with a working note that whatever we have to calculate. So according to the information, first we will calculate the share of profit of Q. Then we will calculate the goodwill, share of goodwill of Q. And after that we will show the capital account of Q. So let's start with this working note. First I will share of profit till the death of Q. So first we will take profit calculate करने के लिए हम सबसे पहले जो प्रॉफिट्स गिवन है हमारा लास्ट 3 इयर्स का, उससे हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट एंड देन प्रॉफिट ऑफ द फर्म. तो एवरेज प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 30,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000 ओवरऑल डिवाइडेड बाय एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे और जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 60,000 rupees as average profit. नेक्स्ट, अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है Q शेयर ऑफ प्रॉफिट.
तो इसके लिए हमें टाइम लेना होगा, बिकॉज इट इज़ अ टाइम बेसिस मेथड यहाँ पे यूज़ होगा। अगर हम प्रॉफिट से कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द टाइम बेसिस मेथड। तो उसके लिए हम ये देखेंगे सबसे पहले कि न्यू सेशन जब स्टार्ट हुआ न्यू अकाउंटिंग ईयर से लेके, इट मीन्स 1 अप्रैल 2014 टिल द डेट ऑफ हिज डेथ दैट इज 12 जून, ये कितने डेज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट मंथ हम नहीं ले सकते, दैट्स व्हाई वी विल टेक इट इन द डेज। सो इट व्हेन वी विल काउंट इट विल बी 73 डेज। तो 73 डेज हो गया नंबर ऑफ डेज टिल हिज डेथ। नाउ क्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट 60,000 multiplied by 73 by 365, that is days, and his share, that is 2 by 6. When we will calculate this 60,000, when we will calculate this we will get the share of Q's profit, that is 4,000 rupees. तो Q का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया हमारा 4,000। अब नेक्स्ट, ये तो हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी कि फर्स्ट कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं गुडविल की, कि हमें एक शेयर ऑफ गुडविल निकालना है, क्यू शेयर ऑफ गुडविल। तो उसके लिए भी वी हैव टू टेक द 3 years परचेज, 3 years प्रॉफिट बेसिस लेना है और उसको कंसिडर करते हुए 2 years परचेज के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। तो गुड टोटल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे अगर फर्म का, तो इट विल बी 30,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000, तो टोटल प्रॉफिट विल बी 1,80,000। आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट। नाउ फर्म्स गुडविल, अगर ये 1,80,000 टोटल प्रॉफिट है तो हमारा 2 years परचेज कंसिडर करते हुए तो हम फर्म्स गुडविल कैलकुलेट करें 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 3,60,000 आ गया हमारा फर्म्स का गुडविल। नाउ अब क्यू शेयर ऑफ गुडविल हमें कैलकुलेट करना है। तो क्यू शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम क्यू के शेयर से फर्म के गुडविल को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट क्यू शेयर ऑफ गुडविल, दैट इज 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, वी विल गेट 1,20,000 क्यू शेयर ऑफ गुडविल आ गया। अब गुडविल निकाल लिया हमने। अब ये जो गुडविल है ये कंट्रीब्यूट होगा तो रिमेनिंग पार्टनर पी एंड क्यू इन देयर गेनिंग रेशियो, दैट इज गेनिंग रेशियो अगर हम उनका देखें, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये जो रिमेनिंग शेयर बच रहा है क्यू के डेथ के बाद दैट विल बी 3:1, तो उनका रेशियो हो जाएगा 3:1। इसी रेशियो में ये कंट्रीब्यूट करेंगे पी एंड आर। तो ये भी हमने कैलकुलेट किया। अब पीज कंट्रीब्यूशन, अगर ये 3:1 में ये अमाउंट कंट्रीब्यूट हो रहा है तो पी कितना कंट्रीब्यूट करेगा एज वेल एज आर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो पीज कंट्रीब्यूशन विल बी 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3:1, दैट इज 3/4, वी विल गेट 90,000। पी का कंट्रीब्यूशन 90,000 हो जाएगा। नेक्स्ट आर्स कंट्रीब्यूशन हम इसी तरह निकालेंगे, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, दैट इज 30,000। दोनों को हम अगर ऐड करेंगे वी विल गेट 1,20,000। तो ये हो गया 90,000, 30,000 पी एंड आर का कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट करें। नाउ इट्स टर्न फॉर प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ क्यू। सो यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव प्रिपेयर्ड द टेबल। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस मीडियल थी कैपिटल अकाउंट का, दैट इज क्यू का कैपिटल 1,20,000। नेक्स्ट है, अब इस साइड हम देखते हैं रिजर्व। तो इस रिजर्व में क्यू का शेयर होगा अकॉर्डिंग टू हिज रेशियो, दैट इज 1,80,000 का हम 2/6 करेंगे तो वी विल गेट 60,000 क्यू शेयर ऑफ रिजर्व। नेक्स्ट जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 4,000 रुपीज़। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में हम देंगे बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट 4,000। अब इसके बाद बात करते हैं जो कंट्रीब्यूशन है गुडविल का वो, तो पी और क्यू दोनों अपनी गेनिंग रेशियो में कैलकुलेट करें, ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड। तो बाय पीज कैपिटल अकाउंट 90,000 एंड देन बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट दैट इज 30,000, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे क्यूज लोन गिवन है दैट इज 1 लाख रुपीज़। तो ये लोन जो है इसका अमाउंट क्यों नहीं अगर फर्म को दिया है तो वो उसे मिलेगा
वापस दैट इज 1 लाख रुपीज़ हम यहाँ क्यू के लोन के अमाउंट को लिख देंगे। अगेन इस लोन पे 5% इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो क्यू विल गेट दैट इंटरेस्ट ऑल्सो। तो अब हम इस इंटरेस्ट ऑन क्यूज लोन अकाउंट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1 लाख रुपीज़ का 5%। एंड फॉर यहाँ पे टाइम कंसिडर करना है, अगेन वी विल हैव द टाइम ऑफ 73 डेज, क्योंकि सेशन अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2014, वहाँ से लेके हमारा 12 जून तक का जो टाइम पीरियड है वो 73 डेज का है। तो हम यहाँ भी 73/365 करेंगे। सो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वी विल गेट दैट इज 1000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 इंटरेस्ट। ये हो गया। अब इसके अलावा हम देखते हैं इस साइड क्या है। अगेन यहाँ पे एक और टर्म है हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है ये एक तरह का लॉस है और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस लॉस को भी बियर करेगा ये पार्टनर लाइक अदर पार्टनर्स। तो इसको बियर करने के लिए ये अपने ही रेशियो में बियर करेंगे, दैट इज 2/6। तो 1,20,000 का जब हम 2/6 कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट 40,000। तो यहाँ 40,000 इसके डेबिट में हम कर देंगे। नेक्स्ट अब हो गया। अब इसके अलावा नथिंग हैज़ बिन लेफ्ट आउट। ऑलरेडी हमने जितना भी इसके कैपिटल अकाउंट में शो करना था एवरीथिंग वी हैज़ गिवन। सो नाउ वी विल डू द टोटल। तो टोटल इधर तो 40,000 हो रहा है, इधर का हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो इधर का टोटल हमारा हो जाएगा 4,05,000। अब यहाँ भी हमारा टोटल 4,05,000 ही होगा, 4,05,000। तो अब नाउ वी विल कैलकुलेट द बैलेंसिंग अमाउंट जो कि हम ट्रांसफर करेंगे टू द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और यही अमाउंट पेबल होगा एक के एग्जीक्यूटर को। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टू क्यूज एग्जीक्यूटर अकाउंट, और हम बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। तो वो हो जाएगा 3,65,000। तो यही 3,65,000 जो है वो क्यू के एग्जीक्यूटर को मिलेगा आफ्टर हिज डेथ। तो इन दिस वे वी जस्ट कैलकुलेट द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ डिजीज पार्टनर, और ये अमाउंट फिर एग्जीक्यूटर को मिलेगा। और वी हैव अदर, इफ इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट प्रिपेयर द क्यूज एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो हम क्यू का एग्जीक्यूटर अकाउंट में पे करेंगे। उसमें फिर कंडीशन अगर ये गिवन है कि ऑल टू ऑल सेम टाइम में पेड हो गया तो हम बैंक अकाउंट करके वो पेमेंट भी कर देंगे। बट इन दिस क्लास आई जस्ट have to explain you about the Q's capital account, and it means that how we just prepare the capital account of a deceased partner. So in this way we just do it. I hope कि you must have understood this today's topic. So thanks for watching this video. Be safe and healthy at your home. Thank you.